جس چیز کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے اس ہدف کو اگر وہ پورا کر رہی ہے، اس ایم کو، اس گول کو کور کر رہی ہے، تو یقیناً وہ چیز سکسیس ہے، کامیاب ہے۔ لیکن جس چیز کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اگر وہ کام نہیں آ رہی ہے تو محنت نہیں ہے، کامیاب نہیں۔ کسی نے ایک واٹر پروف ٹوپی بنائی تاکہ سب نہ پہننے نکلے اور برسات میں بھیگے نہیں۔ وہ ٹوپی اگر سب بھگا دے رہی ہے، خراب ہو گیا ہے تو کامیاب ہو گئی نہیں ہے، بیکار ہے۔ جو چیز کامیاب نہیں ہوتی ہے اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک پھلواری میں پھول لگایا جاتا ہے تاکہ وہ پھولے خوبصورت لگے، اچھا لگے، لیکن اگر پھول میں پھول نہ آئے، پتیاں اس کی بے رنگ ہو، بدرنگ ہو، تو اس کا مطلب جس مقصد کے لیے پھول کو لگایا تھا، اس پودے کو لگایا تھا، وہ اس میں کام نہیں آ رہا ہے۔ تو مالک کیا کرے گا؟ اس کو اگاڑے گا اور اگاڑ کے باہر کرے گا۔ یہ بیکار ہے، یہ بنایا گیا ہدف میں پورا نہیں کر رہا۔ یہ ہزاروں مثالیں دے سکتے ہیں، اس کی کچھ کمی نہیں ہے۔ اسی چیز کو ہم کو اپنے اوپر بھی دیکھنا ہے، کیونکہ اس وقت ہماری جو موضوع گفتگو ہے ہمارا، وہ تو ہم انسان ہیں، ہماری کامیابی ہے۔ مطلب اس کا مطلب نہیں ہے انسانوں کی کامیابی کیا ہے، مچھلیوں کی کامیابی کیا ہے، پرندوں کی کامیابی کیا ہے، کس لیے کرتے ہیں، کبھی بات آ کے ذکر ہو گئے۔ لیکن یار اصل موضوع اور بنیادی میٹر جو ہے تو ہیومن بینگ، انسان ہے۔ یہ انسان کس لیے بنایا گیا ہے؟ جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کی طرف چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ چیز فوراً ہی کامیاب ہو جائے۔ ایک پھول جب لگایا گیا تو فوراً مالی لگا کے پھر جگہ پھول لیا ہے، پھول لیا ہے تو خوشبو نہیں ہے، بہت لگے گا، تھوڑا تھوڑا وہ درخت بڑا ہوگا، ہوگا، پھر اس میں کلیاں آئیں گی، پھر کلیاں کھلیں گی، تو وہ جا کے اپنے مقصد تک پہنچے گا۔ کوئی چیز اگر اپنے مقصد کے راستے میں ہے وہ بھی کامیاب ہے یا اپنے مقصد تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنے مقصد کے راستے کی طرف نہیں بڑھ رہا، کہیں اور جا رہا ہے، جانا تو کہیں جا کہیں اور، یہ درخت اس کو بڑا ہوتا ہے، خوبصورت کیوں کرنا ہے، خوشبو دینی ہے، اس کی خوبصورتی سے لوگوں کو دیکھ کے ان کی آنکھوں کو اچھا لگے گا۔ اس کے بعد مالک پہچانے گا کہ نہیں اس طرف نہیں جاتا، تو یہ سوکھ رہا ہے تو بھی سوکھے گا اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کیاتی کی، اس باغیچے کی خوبصورتی میں یہ بجائے اس طرح کی حصہ بنے خوبصورتی کو بڑھائے، بس خوبصورتی کو خراب نہ کرے، جس مقصد کے لگایا وہ مقصد پورا نہیں کر رہا ہے، یہاں پہ مالک کو نکالتا ہے۔ لیکن جس طرف تک وہ اس راستے کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے، اس کی اس کو کامیاب آ جائے، اس وقت اس کو اس سماج سے، اس کیاتی سے، اس باغیچے سے باہر نہیں کیا جائے۔ یہ معیار ہے ہر آخر انسان کے پاس پر، جس چیز کے لیے وہ بنایا گیا ہے اس کی طرف بڑھنا ہے، کامیاب۔ اب ہم لوگ سننا چاہتے ہیں انسان ہماری کامیابی کیا ہے، انسان کی کامیاب زندگی کیا ہے۔ تو اگر ہمیں تو انسان کا مقصد سمجھ گئے، کس چیز کے لیے فوکس کیا گیا ہے، کس چیز کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے، یعنی ہمارا گول کیا ہے، ہمارا سب کیا وہ ہمارے سامنے طے ہو جائے گا۔ اور اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ جو ہم کر رہے ہیں زندگی میں کر رہے ہیں، جو بھی ایکٹیویٹی ہم کر رہے ہیں، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، اگر یہ کام ہمارا لے جا رہا ہے تو اس کو کامیاب ہے۔ لیکن اگر ہمارا کوئی کام، ہمارا کوئی ایکٹیویٹی ہم کو ہمارے مقصد سے دور کر رہی ہے، اس کا مطلب ہم غلط راستے پہ ہیں، صحیح راستے پہ نہیں ہیں۔ کسی کو نکل کر جانا ہو یہاں سے دونوں طرف ہے، کیا دقت پرانا رکھا تھا لیکن اگر کوئی یہاں سے ہوائی جہاز بھی کر لے اور
हेलीकॉप्टर में खरीद से, लेकिन हेलीकॉप्टर लखनऊ के बजाय इलाहाबाद की तरफ लेके जा रहा हूँ। उसका सफर सही है, सफर सही नहीं है। तो एक उसूल ये भी है, किसी चीज के सही और गलत होने का मेयार ये है, बहुत अहम होता है, बहुत तवज्जो के साथ। जब हम जो बातें विचार इकट्ठा करते रहेंगे, अहम ये चीजें ऐसा होता है ना, सब एक नतीजे रख सकते हैं। इसमें जो बात बहुत है कि जो चीज हमारे मकसद से मुताबिक रखती है, यानी हमारे मकसद तक पहुंचने में हमारी मददगार है, हमारी हेल्प करने वाली है, हमारे हमको मकसद तक पहुंचने में हमारे लिए परेशानी नहीं कर रही है, कोई रुकावट नहीं बन रही है, बल्कि मदद कर रही है। हर वो चीज जो हमको हमारे मकसद तक पहुंचती है, इंसान कहता है कि ये चीज अच्छी है, वो चीज अच्छी है, और जो चीज के हमारे मकसद तक पहुंचने में रुकावट बने होती है, जो कि उसको ऐसे रब से मुशावरत करता है। ये उसूल है, हमें उसूल को इंशाअल्लाह आगे करेंगे। ये बुनियादी है, इसको एक बात और करना है। ये बताइए कि इस वक्त जहाँ मस्जिद हो रही थी, ये सारी सोचने या मेहनत नहीं कर सब कहते हैं मस्जिद हो रही है या दुनिया क्या पानी का, ये गलत है। लेकिन आज यहाँ पर सच होता है, नहीं है, तो कुर्सियों को अपने आप न सही है न गलत है, बल्कि जिस मकसद के लिए यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है ना, उस प्रोग्राम में अगर कुर्सियाँ मदद कर रही है तो अच्छी मदद नहीं कर रही है। वही लोग घरों में जैसे करते हैं, बेहतरीन सोफा लगा हुआ घर पे अच्छा है, नहीं है बहुत चीज लगा हुआ बैठने वाले जाएंगे, लेकिन आज मस्जिद कराना है, वही सोफा खराब हो गया है हमारे, वो सोफा उठा के नहीं है दूसरी जगह रख के यहाँ मस्जिद रखते हैं, मस्जिद खत्म हो जाती है फिर उसको लेके आते हैं। तो जहाँ पर भी है जो भी हमारे मकसद में जो चीज हमारी मददगार हो रही है वो हमारे लिए अच्छी है, और जो हमारे मकसद में हमारी मददगार नहीं है वो हमारे लिए बुरी है। ये तो तीन चीजें लेकर हमने अच्छे तरीके से, सबसे पहले कि किसी भी चीज की कामयाबी या नाकामयाबी का मेयार उसकी वजह निर्भर है, उसको किस लिए बनाया गया है, उसका एम क्या है, उसका गोल क्या है। ये अगर हमें सामने है तो हम समझ सकते हैं कि ये चीज कामयाब है या नहीं। क्यों? अगर उस मकसद की तरफ बढ़ रही है, उस मकसद की उसूल में कदम आगे बढ़ा रही है तो वो कामयाब है। लेकिन अगर उसका रास्ता कहीं और को लेके जा रहा है तो अब दूसरा मसला ये है कि किसी चीज को अच्छा या बुरा कहते हैं, किसी भी चीज का अच्छा होना, किसी भी चीज का बुरा होना, इस बात में डिपेंड करता है कि जो हमारा मकसद है, जो हमारा एम है, उसमें ये चीज हमारी अगर मदद कर रही है तो अच्छी है, और अगर हमारी मदद नहीं कर रही है तो बुरी। तीसरी और अहम बात ये है कि इंसान किस लिए पैदा किया गया, इंसान किस लिए पैदा किया गया। इंसान को अगर हम जायज देंगे, लेकिन सबसे पहले नतीजे पर आपको समझ रखिए कि इंसान खर्च किया गया है और अल्लाह की मार्फत हासिल है। अल्लाह की मार्फत हासिल किए बगैर इंसान कामयाब नहीं है। इंसान की सआदत और इंसान की कामयाबी इस चीज में है कि वो अल्लाह को पहचान ले, अपने खालिक की मार्फत हासिल करे। अब हम यहाँ पर शुरू करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सवाल ये बताएं कि अल्लाह है, तो जो जो कह रहा है जी है, क्या कैसे कह रहा है, क्यों है, किससे बताया, किससे बताया। पहले सवाल से जवाब आ गया, इसके जवाब के बाद जी था, उसके जवाब के बाद क्यों, किसने कह दिया, किसने बताया, किसने बताया। नौजवान बच्चों, आप कोई बाहर से क्यों उतार जाओ, जो हमारे पास बताइए बाहर नहीं है, बाहर जा क्यों है, आप ही लोग क्यों कह रहे हैं, आप ही लोग अहमद मोहम्मद यासीन अली इब्राहिम जी अल्लाह है नहीं है, अल्लाह किसने बताया,
जो चल रही है वो बगैर चलाने वाले की नहीं चल सकती है ना। कोई छोटी से छोटी चीज़ भी अगर चलती है तो उसका कोई बनाने वाला होता है। तो इतनी बड़ी दुनिया अगर इसका कोई बनाने वाला नहीं होगा तो कैसे चलेगी? ये बात जो आप कर रहे हैं आपको समझना है। एक सवाल है, सवाल पर एक चीज जो बता रहे हैं आप जानना है क्यों होता है कितना होता है आपके लिए इंसान रहता है बहुत जल्दी शाम करते हैं बहुत वाकई आपके लिए इंसान रहता है। अगर कोई कहता है कि हमारे बाबा ने बताया तो फिर ये बात नहीं थी, बाबा के बताने से अल्लाह नहीं होगा। तो जैसे हम हमारे बाबा सही के बारे दादा ने बताया, हमारे वैसा ने बताया, हमारी फादर ने बताया, अगर शामिल नहीं हम आवाज मत करो, तुम आवाज क्यों करो? कहना क्या चाह रहे हैं सवाल से ज़हन आपको क्लियर करना है कि हम जो भी बात माने खासतौर पर अकीदे की बात है, अल्लाह है, रसूल की ज़रूरत है, इमाम होना चाहिए, इमाम की ये इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? उसूल दीन कह सकते हैं। अकीदा जो मान रहे हैं इसको आइडियोलॉजी कहते हैं। दुनिया के बारे में, जहाँ के बारे में, दुनिया कैसे बनी है, कहाँ से आई है, इसका कोई इस्तेमाल है या नहीं, इसका कोई मदद है या नहीं, तो ये भी तू यहाँ पर पहुँची नहीं पाता। मतलब अल्लाह की बात करना, अब इसी बुराई करना है, वहाँ पर ऐसा है या नहीं है? हमने कह दिया कि इंसान की कामयाबी नहीं मानता है, वहाँ पर ऐसा है या नहीं, कौन बताएगा? इंसान को मानना हासिल करता है, जो चीज़ सीखता है उसके कई रास्ते बहुत समझो का उसको लिखना भी पड़ेगा। इंसान जो चीज़ें सीखता है उसके रास्ते हैं। नंबर एक आंख। इंसान की बात करता है लगा है कि आंखों से लगे से सोचता है और कुछ चीज़ें उसमें पहले से ही मौजूद हैं फितरत के बाद। तो इल्म का वसीला होता है, इल्म का जो औजार है इंसान का, एक अक्ल है और एक फितरत है। और अब फितरत जब किसी के सच्चे होने को हासिल कर देती है तो फिर जब सच्चा कोई नहीं खबर देता है कि बात बताता है कि ये दूसरा रास्ता है। इन तीन रास्तों से इंसान किसी चीज को समझता है, जानता है, इल्म फिर से बता रहे इंसान जो इल्म हासिल करता है दूसरी चीज फितरत है और तीसरी चीज है किसी सच्चे का कोई चीज बताना, खबर देना। जैसे पैगंबर से साबित हो जाए हमारे लिए कि पैगंबर मासूम और सच्चा है, तो फिर जो वो खबर देंगे जो भी बताएंगे हमको उसको मानना पड़ेगा। लेकिन इन तमाम चीजों में सबसे पहले और सबसे अहम चीज है आप उनकी जरूरी जुबानी हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि पैगंबर अकरम ने बताया है अल्लाह है इसलिए हमें माना है, ये बात सही है? सही नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि पैगंबर अकरम वो क्यों हम मानते हैं? क्योंकि अल्लाह ने उनको भेजा है। अभी जब हमने अल्लाह को ही नहीं माना तो पैगंबर की बात कैसे माने? पैगंबर का एतबार, पैगंबर की अहमियत, पैगंबर का मासूम होना, ये सब कब साबित होगा? जब पहले अल्लाह होगा। जब हम पहले ये साबित कर लेंगे कि अल्लाह मौजूद है तब हम साबित कर सकते हैं कि कुरान एक ऐसी किताब है जो तशरीह है। अगर कोई कहता है कि अल्लाह है इसलिए कुरान नहीं होता है, हम ये पूछेंगे कुरान की किताब है, क्यों हमारे कुरान की किताब? हमने तो बहुत सारी किताब है, तो कहते हैं कुरान की अल्लाह की किताब है, हम पर क्यों कहेंगे कि ऐसी तो बात इसी की हो रही है अल्लाह है या नहीं? इसको भी साबित करना है। इसी तरह से पूछा कि आपका घर कहाँ है? थोड़ा बहुत इमामबाड़ा है आलमपुर में, इसी साल की वाले हैं उस इमाम
लॉजिक जिनमें मंदिर जो इंसानों को सिखाता है कि बात की जाए, जिक्र किया जाए, उसके जो सबसे बड़े मुसन्निफ हैं और उन्होंने कहा कि अगर इंसान के पास अक्ल न हो, एक ऐसा ये मरकजी नुक्ता है अक्ल, इसी से सारी बातें शुरू होती हैं। जो चीज अक्ल में आएगी फिर वो सही है, एक बात सही होगी, उस सही बात से दूसरी सही बात पर हम पहुंचेंगे, दूसरी सही बात और बड़ी सही बात हो जाएगी, तीसरी सही बात पर पहुंचेंगे, धीरे धीरे हमारा दिल आगे बढ़ेगा। लेकिन एक चीज, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो पहले से ही था। अगर वो पहले के साथ और इस बात को सारे इंसान अपने चाहिए हमारी आत्म बताती होगी। अगर अगली गलत बताने लगे फिर इसको बर्बाद किया जाता है। जरूरी है बहुत जो अखीर की बातें करना है, अल्लाह को साबित करना है, अल्लाह उसको वहाँ होने वाले की जरूरत है। क्योंकि ये अकीदा जो है हमारा, अगर किसी का समझाया हुआ अगर हमने कल क़यामत कहा जिसे पूछा गया कि ऐसा क्या आप नहीं है कोई बात तो आज ये कुरान में बात सब नजर बनती है जो लोग ये कहते हैं कि इसलिए का बदलना आवाज़ या अपने आप को ऐसा तो अगर हम इसलिए अल्लाह को आपसे गिरा अल्लाह के अल्लाह का ईमान के साथ करते हैं काफी नहीं है जब तक हमारे बाप की हालत की तदीर नहीं हो। लिहाजा बहुत जरूरी है कि हमारे जितने भी मसले हैं हमारे तौहीद हो, यूस हो, उम्मत की ज़रूरत हो, आइमा की ज़रूरत हो, क़यामत का मसला हो, ये सब कुछ हम अपने पास अपने से समझे अच्छी तरीके से यकीन बना सकते हैं। क्योंकि आप ही वो मियार है जिसके जरिए से इंसान को पढ़ना है। इंसान के पास आगे के अलावा पहला सहारा यही है, पहला मरकजी नुक्ता यही है। इसी अकल का सहारा पढ़ के आप अपनी पकड़ करना वरना वही बदला है बार बार वो बात सुनाई जिसको इस्लाम कहते हैं दौर। घर कहाँ है? मामवाड़े मामवाड़ा का है, ये लड़के का तकलीफ तक हमको नहीं मिलेगा। लिहाजा जरूरी है कि ऐसे लोग से चालू पढ़े तो अपने आप में और इंसान जानता है उसके बाद उसी घड़ी बात इंसान चाहिए आप इंसान अशवे को उसी की तरफ आ गया कि उसके पास सोचने समझने की सलाहियत फिक्र करने की वरना तो आप ही इंसान की बात नहीं इंसान सोचता है, इंसान भी देखता है, सुनता है, करता है, सुनता है, क्या है वो है और इसी अक्ल की बुनियाद पर तो आप बहुत बड़ा करना जो अकीदा हमारा हो अक्ल के ऊपर लफ्ज़ अकीदा भी इसी अर्थ में आया है। ज्ञान के बाद की जाती है कहते हैं अकीदा। अकीदे की सारी बातें किसी की बताई भी नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? अक्ल से समझ के, सोच के, दलील ला के, आर्गुमेंट के जरिए साबित करके, बुरहान के जरिए साबित करके हाँ ये बात है तो वो जाके बड़ा अकीदा होना चाहिए हमारा। कोई पूछे कि वो क्या क्यों होता है, क्या कोई जवाब दे देगा कि हमारे बाप ने बताया, हमारे टीचर ने बताया? नहीं, वो था तो होता ही है, पूछने की क्या होगा? ये कोई जवाब नहीं देगा कि वो चालीस में वो बता रहा है क्योंकि हमारे टीचर ने बताया। नहीं, वो 40 में वो बता रहा है 204 ही होता है। ये ताकीद ये ही कहना इसलिए क्योंकि ये चीज अक्ल से निकल के आती है, हमारे अकीदे को कोई अक्ल होता है। तो दूसरी अहम बात जो आज की तरफ की हुई है कि जो कुछ हम माने अकीदे के मान से वो हमारी अक्ल के ऊपर रखा होना चाहिए। किसी की कही हुई बातों का हमारा अकीदा नहीं है, किसी की समझाई हुई बातों को सहारा बना सकते हैं समझने के लिए। कोई समझा रहा है समझ सकते हैं, जितना
इस तरीके से साबित होना चाहिए हमारे लिए। ज्यादा हम सवाल उठाया कहता है कैसे हर एक के पास कोई ना कोई एक दलील होनी चाहिए जिससे वो साबित कर सके कि अल्लाह मौजूद है। कोई है ऐसा साबित करे कि अल्लाह है मौजूद है, कोई दलील दे सकता है? बस जैसे आपने दलील देने की कोशिश की, बिस्मिल्लाह। हम बात करें मुश्किल समझ एक मशहूर बात जो राजस्व करते हैं इस इख्तिलाफ में ये याद नहीं आना है मतलब मुझे बताया जाता है कि ये किसने बनाया? किसने बनाया? मेरे ध्यान से ये बोल के सामने कोई करता है ये कलम किसने बनाया? कोई जवाब याद नहीं आता और मुझे ध्यान नहीं करता ये कलम किसने बनाया? याद नहीं है अपने आप में बहुत बड़ी ऐसा ही बना फिर वही इस्तेमाल पेश किया जाता है कि जब हरफ बनाने वाली चीज का कोई बनाने वाला है तो इस कायनात में बनाने वाला कोई ये बात बहुत सख्त है और यहाँ इसी की बात से शुरू करनी है। अच्छा आप में कितने लोग हैं आप लोगों ने जो शवायद और जामुन अक्सर के मुनासिब बात करना सुना किसने नहीं इतना नाम शख्स ने कमा लिया एक छोटे से मुनाजरे में पूरी दुनिया में कलाम है उनको उसकी इज्जत हो रही है जब फिर उस इस्तेमाल को पेश किया निहायत सादा इब्तिदाई और इंशाअल्लाह बहुत किसी के बाद आप यहाँ से क्या करते हैं वो इस्तेमाल करने का है तो नहीं मैं बहुत ही आसान था लेकिन बात उसने इंग्लिश में कही वो ऐसे टर्म्स इस्तेमाल किए लोगों लगा के बहुत ही बात है सवाल यहाँ बहुत सादा है घर बनाने वाले शय का कोई बनाने वाला होता है इस कायनात में कोई बनाने वाला है लेकिन जब यहाँ अगला सवाल होता है वहाँ से हमारी बात वो सवाल ये है कि देखिए कौन जवाब देता है कि जब घर बनाने वाले का कोई बनाने वाला है तो फिर खुदा बनाने वाला कौन कानून जो है वो करना चाहिए जब ये तरह बनाया कारखाने वालों ने और क्या क्या बनाया बनाया तो इस पूरा कायनात का बनाने वाला आते हैं क्यों? क्योंकि हर चीज को बनाने वाला कोई होना चाहिए जब हर चीज को बनाने वाला कोई होना चाहिए खुदा को बनाने वाला कोई होना चाहिए यहाँ जब किस विषय अब यहाँ से धीरे धीरे हम लोग इंशाअल्लाह सीखेंगे और साबित कर सकेंगे अपनी कभी किसी मुक्ति के अल्लाह है और यकीन के साथ और इस तरह के सवाल को कोई है जवाब देने वाला अल्लाह